just look into it. I'm not share my screen for some reason. Yeah, give me a minute. Yeah. So good evening all. Firstly, a quick mic check. Hope my voice is audible and my screen is visible to all. Okay, fine. So good evening once again and welcome to today's session. I'm Shantina from Stockage Fundamental Desk and आज के सेशन में जो एवरी ट्यूसडे हम लोग लर्न करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं certain features in our app which are based on fundamental based features जो हम लोग को हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. Excuse me. So we will begin with the with the analytics segment where we will be learning investment ideas. उसके बाद हम लोग edge reports में जाएंगे. Post that we will understand investor portfolio, investor theme. Then we will get into company filings. And after that, we will try to understand what is edge insights. Then in the market segment, we will learn about SME zone. Then my colleague Raghav will be joining me, जो आप लोगों को mutual fund segment explain करेगा, right? And post that we will go to Stockage Social. वहां पे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग queries कैसे post कर सकते हैं in relevant clubs and how many clubs are there in Stockage Social. Plus आज का recording हम लोग को कैसे मिल सकता है, right? So this will be the today's sessions flow. Yeah, I'm with the new interface itself. This is the new interface itself, right, Kiran ma'am? All right. So हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनालिटिक्स सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट आइडियाज, राइट? सो जैसे आप इन्वेस्टमेंट आइडियाज में जाएंगे, we'll get to see a lot of companies name one after the other. So सबसे पहले हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आइडियाज के अंडर में क्या सारे कंपनीज कवर्ड है? सो द आंसर टू इट इज नो. द रिसर्च टीम वो suo motu बेसिस पे डिसाइड करती है कि which companies they find will be suitable for long term investment, right? And what do I mean by long term investment? The long term investment means the time horizon is more than 2 to 3 years, correct? So यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको एक केस स्टडी का आइकन नीचे लिखा मिलेगा, उसके बगल में एक पीडीएफ का आइकन मिलेगा. आज हम लोग पीडीएफ पिडिलाइट का एग्जांपल लेते हैं. सो लेट्स क्लिक ऑन दिस पीडीएफ. द मोमेंट यू डू सो, आपको यहाँ पे इस पेज में सबसे पहले पिडिलाइट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड मिलेगा. देन यू गेट दिस स्पाइडर चार्ट विद एज मीटर स्कोर रिटन बिलो इट. नाउ एक के बाद हम लोग एक समझते हैं. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इज all these case study gets updated every quarter, right? And आपको यहाँ पे latest case study का date भी mentioned मिलेगा. Then the case study, what we do is we study a company based on its both qualitative as well as quantitative aspects, right? So यहाँ पे हमने जो जितने भी case studies हैं उसको study किया है based on 6 parameters. Now what are those parameters? The growth, profitability, efficiency, solvency, which talks about the company's debt profile, right? Valuation and quality. And each of these metric का total score है, like the full score is 5 on which it's based. So जैसे कि growth में हमने 4 दिया है out of 5. Same goes profitability and efficiency. Solvency, it gets a score of 5 out of 5, followed by valuation of 2 and quality 4. The total, the summation of these scores stands out 23 out of the total 30. Now हम लोग इस रिपोर्ट में जाते हैं एंड समझते हैं कि केस स्टडी में क्या डिस्कस्ड है. सो सबसे पहले यू विल गेट टू नो अबाउट द कंपनी, राइट? एंड हियर इट आल्सो द ब्रांड्स आर मेंशन्ड. देन वी गो टू द रेवेन्यू ब्रेकअप, राइट? So
कौन से सेगमेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है. सो हियर वी गेट टू सी दैट adhesives and sealants gives a revenue of contribution of near about 56%. Then is the growth. Now growth metric has further been divided into three, that is sales growth, EBITDA growth and PAT growth, right? And after studying these three parameters, उसके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इस सारे पैरामीटर्स को पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेसिस में पढ़ने के बाद वी अराइव एट अ स्कोर ऑफ 4/5, राइट? सो ऐसे ही हम लोग दूसरे प्रॉफिटेबिलिटी है जहां पे मार्जिन्स डिस्कस्ड है और रिटर्न मेट्रिक्स डिस्कस्ड है, राइट? फिर उसके बाद आपका एफिशिएंसी आता है जहां पे कैश फ्लोज, वर्किंग कैपिटल एंड फ्री कैश फ्लोज, यहाँ पे केपेक्स भी मेंशन रहता है. देन वी हैव द असेट टर्न. पोस्ट दैट द सॉल्वेंसी विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, जहां पे डेट टू इक्विटी मेंशन्ड है कि कितना डेट है कंपनी के बुक्स में, राइट? उसके बाद इसका इंटरेस्ट कवरेज, मतलब द कंपनीज एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट, वो कैसा है. एंड करंट रेशियो, जहां पे कैश बैलेंस भी मेंशन रहता है. सो वैसे करते अदर पैरामीटर्स आर आल्सो डिस्कस, जैसे डिविडेंड यील्ड है, देन की लेवल्स. मैनेज नाउ कम्स द क्वालिटी पार्ट वेयर वी डिस्कस द मैनेजमेंट, the shareholding pattern and the sectoral potential. Then we have the competitive landscape. Now how competitive the company is and what is it is doing to maintain the same, correct? And the future outlook. After studying all this, we come to a total score of say 23, right? So this is about the case study. So what there is a question that Gauri sir say ki what are the parameters one should analyze for selection of good fundamental stocks. So these are the parameters which one should focus upon while selecting a good company, right? And what you need to do is you always need to study like all the factors into together and not in isolation, right? Management plays a very important role. You try to find out their governance, if there is any governance issues or not, and how the management has been faring from beginning till date. Then how is the demand, how the sector in which the company is performing, that is doing, like, and then the operating profitability, how is the capital structure. So all these matters while selecting a good company. Then what we see is here, if you click here, I'll just increase the time frame. So you get to see these two color bands. One on the lower side है green color का band and on top है ये red color का band, right? Now the question comes कि ये दोनों colors के bands आए कहाँ से, right? So हम आपको request करेंगे कि हमारी जो case study है उसके वैल्यूएशन सेगमेंट में की लेवल स्लाइड पे थोड़ी देर के लिए फोकस करें. अगर आप इस स्लाइड को पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि जो एनालिस्ट ने इसको स्टडी किया है और इस पे ये रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर किया है, अकॉर्डिंग टू हिम और हर द जोन ऑफ 2050 to 2200 act as a strong base, right, for long term investor. And on the upside they say that whenever the stock price comes to a zone of 3300 to 3500 zone, then you got to be cautious, right? There can be a chances of supply coming at that particular zone. So वहीं से देखिए the same thing has been replicated out here. तो जो price levels है that is getting captured in this green and red band. So the lower band is getting captured in this green zone, while the red one is getting captured here, which is 3300 to 3500. And now since the stock price is in near the red zone, so there can be a chances of prices seeing some decline. So that is what is indicated out here. Clear till here?
What is red band and what is green band? All right. So let's move forward. So this is what is indicated by these red and green bands. Now the question comes, you'll see all these, these marks, circles, yellow circles with scores written in it. 24, then 23. So these are nothing but the total edge scores that has been given to this particular company. Correct. And you see, if I increase the times period, then it has, when the case study was initiated, the score was 21, and over the period it went up to 24, और फिर अभी at present ये 23 पे है, right? Okay, now the question comes, since this report gets published quarterly, so ma'am, as I have already mentioned that these are for long-term purpose. Now, why do we publish these reports every quarter? So that you get updated, like what is happening in the company based on every quarter's performance, right? But these are for long term, say 2 to 3 years ka horizon, so that you don't miss upon how the company is performing. So that's why we publish it every quarter. So this was about the investment idea levels. Now comes the spider chart I have already shown. Now you will see certain key under key levels. Some key levels are shown in red and some in green. Why? So here you see the price is trading near the red zone. That's why the key level is shown in red. And 1.20 gap is nothing but the difference between the last traded price and the key level. No, actually, I take Pidilite because it is easier for me to explain. That's why. So, and it's doing well also. That's the reason. I have now no biasness for it. Anyways, Pidilite is a very good company. It has its own mode. So yes, you can say that. Vasu sir, in the next session, I'll definitely take the example of Nilkamal. Correct? All right. Now let's move forward. So with this, I have explained investment ideas. I'll wait for seconds time to see if there is any more questions pertaining to investment ideas. Then I'll move forward. Key level is not exactly support and resistance. Key levels, what we say is that, I'll just show it once again. Say suppose here now I've taken Nilkamal's example. Now Nilkamal is trading in the green zone, right? So as per our what we suggest, I'll just get to the case study first, so that it's easier for me. Just a second. Okay, so this act as a strong accumulation zone, accumulation base, right? So as per the analyst, he or she feels that whenever the stock price comes to this particular green zone, it acts as a very good accumulation zone, right? So whenever the company's price has come to this green zone, after that it has seen a rise. Now again trading consolidating in that particular zone of 715 to 1980. So this acts as a very good accumulation point as per the analyst, right? So this is what is mentioned in this particular, for this particular company. And say whenever, again I have, sorry, but I have to take Pidilite's example. And whenever the stock price comes to this red zone, right? Here, what the analyst feels is this acts as a supply zone, that from here a supply can come in, and at that point of time, the investors
need to be a little bit careful with their holding. Patil sir, can you just help me? What you want to understand? Okay. So if you're having any problem with the app, kindly get in touch with the support team. They will help you with the same. Okay, and no, there is no Excel summary for all stocks in the in one place. So if you want to check the perform like how what is the current performance of the stocks, so you have to get into the investment ideas and check it out. So you'll get to see the current key levels with the scores. All right. Now we have completed one research report. Now let's get to see what are the other research reports that have been published. So हम लोग research edge report section में जाएंगे and अगर इस all category में click करेंगे तो we get to see few other research reports that have been published by our team, research team. So सबसे पहले case study है जो हमने already देख लिया है. उसके बाद है con call analysis, infographic, IPO note. Stocks to watch is mainly pertaining to technical analysis. So इसलिए आज I'm not the expert in the same. So इसलिए मैं इसको skip करूंगी. Correct? Okay. I have one question. Significance of the figure in yellow circle is that is the score, the total H score of any particular case study. Ma'am, Neeti ma'am, can you put out your like request, whatever it is? I'll ask the team to get back to you. All right, all right. I'll ask that if we could add some sorting table to, filter to it. Best score is 20 and above. Okay, fine. Neeti ma'am, I'll put forward your request. So let's move forward with this edge report section. तो केस स्टडी हमने देख लिया है. अब हम लोग चलते हैं कॉन कॉल एनालिसिस पे, राइट? सो अगर हम लोग कॉन कॉल एनालिसिस में जाएंगे, so what happens is every earning season companies do interact with the investors as well as the analyst team. They discuss what has been, how has been the company has been performing, their quarterly performance. Plus they also give chance to the analysts as well as investors to interact with them to understand how the company is faring, how it, where it's heading, what are the opportunities and threats that the company might face, how and others, right? So what happens is like during the earning season, it becomes very difficult to track which company is conducting their con call at what time. Then even if it's 1 hour, one bare minimum 1 hour long, plus transcript आने में भी time लगता है. Transcript आता भी है तो 18-20 pages long होता है. So to minimize all those things, what we have done is we listen to the con call, and what we do is we prepare a summary report on the same, highlighting the major pointers, which becomes like which highlights the major pointers and also help us to understand what are the areas where we need to focus. So first, if you go to any edge report, so it's here beneath the organics, right? So a little bit about the quarterly performance has been discussed. Then here you get a score meter, which is machine generated, which reads the report and try to give you a sense whether this con call report is, how is the sentiment, positive, neutral or negative. And let's hop into the report. So the con call reports look some like this, where the first the financials are discussed, I mean indicated, and then you get the business highlights, future outlook, right? So going through 10-20 pager report becomes tedious. So what we have done is here you get to see only the major pointers, and accordingly you can make your investment bet.
ओके, नो द समरी इज समरी एआई जेनरेटेड नहीं है। अब सिर्फ ये वाला जो मीटर है वो एआई जेनरेटेड है। लाइक समरी हम लोग सारे रिसर्च टीम मेंबर्स कौन कॉल सुनते हैं एंड वी डू इट ऑल मैनुअली, सो नो एआई इन्वॉल्व। ठीक है। नहीं, हम लोग के पास एनुअल रिपोर्ट वी डोंट एज ऑफ नाउ डोंट हैव एनुअल रिपोर्ट समरी। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इज अ कॉन कॉल रिपोर्ट। नाउ लेट्स गेट, अगर से सपोज मुझे किसी पर्टिकुलर कंपनी का बहुत सारे लाइक क्वार्टर्स का कॉन कॉल चाहिए, सो आई कैन डू इज आई टाइप से ब्रिटानिया, एंड ब्रिटानिया पे जितना भी कॉन कॉल्स टिल डेट हुआ है वो आपको सारा मिल जाएगा। राइट, तो आप ऐसे भी करके कंपनी का कॉन कॉल सर्च कर सकते हैं। करेक्ट। नाउ लेट्स गेट इनटू इंफोग्राफिक। जस्ट अ सेकंड। सो इंफोग्राफिक क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल इंफोग्राफिक्स। ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल इंफोग्राफिक दोनों शो करूंगी। सो सबसे पहले लेते हैं इन टेक्निकल इंफोग्राफिक, जहाँ पे मेंशन्ड है कि टॉप 5 कंपनीज जो अपने ब्रेकआउट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। सो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है कि आप जस्ट ये इंफोग्राफिक देखें और आपको पता चल जाएगा कि टॉप 5 जो 5 कंपनीज है जो अपने की लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। राइट, सो अतुल सबसे पहले हम देखेंगे, अभी सीएमपी चल रहा है 8002 एंड उसका की लेवल एज पर द टेक्निकल टीम है 800 136। राइट, सो आप ये जस्ट इंफोग्राफिक देख के बिना चार्ट देखे या कुछ आप आराम से अपना ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। राइट, secondly, I'll just show one fundamental infographic. Now here we have top 10 public sector banks having lowest net NPA. Net NPA मतलब net non-performing assets, right? And here आपको देखिए net non-performing asset and gross non-performing asset का little bit difference भी provide किया गया है। What is the difference? That is gross NPA से अगर हम लोग provisions हटा देते हैं, which banks में we get the net NPA, which is a better or a, you can say a more narrowed like a comprehensive view of the company's asset quality. राइट, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोएस्ट सबसे किसमें है। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप्स द चार्ट विद 0.20% ऑफ नेट एनपीए। राइट, एंड आपको यहाँ पे टोटल एडवांसेस भी प्रोवाइड किया गया है। सो आप यहाँ फिर आप एट लास्ट इज बैंक ऑफ इंडिया जहां पे नियर अबाउट 1% का नेट एनपीए है। राइट, सो आप यहाँ से आराम से किसी भी पब्लिक कंपनी का असेट क्वालिटी आप एक बार में आपको समझ में आ गया। राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द इंफोग्राफिक। की लेवल इज द लेवल प्रोवाइडेड बाय द टेक्निकल टीम। आई जस्ट एक बार मैं फिर आपको समझाती हूँ। जैसे ये है, सो अभी सीएमपी चल रहा है 8002 और वो बोल रहे हैं कि की लेवल है 8136। राइट, इस जगह पे ये जा सकता है बियॉन्ड दिस प्राइस 8136 और एक फ्रेश मोमेंटम क्रिएट कर सकता है फॉर लॉन्गर टर्म। राइट, सो दिस इज व्हाट की लेवल मीन्स। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू, no, I'm not the correct person to explain the charts, so I'll give it a skip. All right, now let's get into IPO note. Now, IPO note is very like important note which comes out from our end, right? Report. And if we go into it, just click on this PDF.
तो आपको सबसे पहले जैसे कि के RN हीट एक्सचेंजेस एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड की IPO नोट में सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाया जाएगा। देख फिर यहाँ पे आपको एक इंडिकेट किया जाएगा। अगेन डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट AI generated or machine generated. This is what the analyst team feels about this particular IPO. करेक्ट? तो हमारे रिसर्च टीम को लगता है कि ये पर्टिकुलर IPO एवरेज है। तो चलते हैं हम लोग रिपोर्ट में देखते हैं कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, कैसा एक IPO नोट है एंड व्हाट वी कैन लाइक लर्न फ्रॉम इट। सो सबसे पहले यहाँ पे ओवरव्यू सेक्शन में लिटिल बिट अबाउट द कंपनी, उसका फाइनेंशियल हाइलाइट्स, इशू साइज क्या है, इसमें फ्रेश इशू कितना होगा एंड OFS कितना होगा, इशू डिटेल्स क्या है वो सब एक्सप्लेन्ड है, right? Then you go down, you understand about the company. Also your company product mix, कौन से प्रोडक्ट से कितना है टोटल। देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन्ड है। यहाँ पे आपको इंडस्ट्री मिक्स एंड ज्योग्राफी मिक्स आपको समझ में आएगा, कौन सी इंडस्ट्री को ये सबसे ज्यादा केटर करता है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कमर्शियल AC को ये सबसे ज्यादा केटर करता है, विच इज 70%, फॉलोड बाय डेटा सेंटर्स, राइट। एंड सबसे मैक्सिमम रेवेन्यू इसका राजस्थान से आता है। देन यू हैव द सेक्टर आउटलुक, then you have the competitive landscape, which is very important. The company in comparison to the other players, listed players, so you get to understand ki how the company is faring in the marketplace, right? Then the object of the offer, why they are raising this IPO and how they are going to utilize the IPO proceeds, right? उसके बाद प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर आप इस IPO में इन्वेस्ट करते हो तो कौन से रिस्क फैक्टर्स है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे है उसके फाइनेंशियल्स, की मेट्रिक्स जो आपको फोकस करना चाहिए व्हाइल इवैल्यूएटिंग दिस पर्टिकुलर कंपनी, एंड फ्यूचर आउटलुक। उसके बाद आता है स्वॉट एनालिसिस, राइट। द स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, वीकनेस एंड थ्रेट्स, एंड पोस्ट दैट आफ्टर स्टडिंग द सेम the analyst team feels that this particular IPO is average. उसके बाद टाइमलाइन है, हम लोग टाइमलाइन प्रोवाइड करते हैं जब से इशू ओपन हो रहा है एंड दी टिल दी लिस्टिंग डेट। सो आप ये वाला टाइमलाइन से आप इजिली यू कैन स्टडी एंड अंडरस्टैंड कि आपको लाइक व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस, व्हेन इट्स गोना एंड एंड व्हेन इट्स स्टार्टिंग। रिकॉर्डिंग्स में आपको एंड में बता दूंगी, राइट। Shubham sir, it's within the day itself. It's share within the market hours. All right. So with this, I like just a second. So with this, the edge report section is completed. Now let's go to company filings, right? So company filings क्या है? कंपनी जितने भी कंपनीज है जो BSE NSE या किसी भी एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, उसमें कोई भी अपडेट्स आता है, दे हैव टू इन्फॉर्म दी एक्सचेंजेस, राइट। बी इट चेंज इन मैनेजमेंट हो गया या कोई कॉर्पोरेट एक्शन है या उन लोग बोर्ड मीटिंग करेंगे, सो वो एक्सचेंजेस में लाइक इन्फॉर्म करना पड़ता है, एंड दोज आर नोन एज कंपनी फाइलिंग्स, राइट। सो आप किसी भी कंपनी BSE एक्सचेंज में जाओगे, कोई कंपनी का नेम टाइप करोगे, उसके कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन में जाओगे, सो वन आफ्टर द अदर आपको बहुत सारे फाइलिंग्स मिलेंगे, एंड तो वो समझ में नहीं आता है कि विच फाइलिंग टॉक्स अबाउट व्हाट, एंड समटाइम्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस भी हो जाता है। प्लस हमें हमेशा सब कुछ चेक करने का मन भी नहीं करता, वी वांट सर्टेन स्पेसिफिक थिंग। सो टू कट डाउन द नॉइज व्हाट वी हैव डन इज, हमने कंपनी फाइलिंग्स को वेरियस हेड्स के अंडर में जनरलाइज कर दिया है। लाइक से सपोज मुझे जानना है एक्विजिशन के बारे में, राइट। सो हियर यू सी जितने भी कंपनीज हैं लाइक 1 अक्टूबर के हिसाब से कि जिसमें भी एक्विजिशन रिलेटेड कोई भी अपडेट आया है, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन हियर, राइट। सो कोई भी इंफॉर्मेशन छूट नहीं जाएगा। से सपोज अवीर फूड्स में कुछ एक्विजिशन रिलेटेड हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन दिस PDF
and it will directly take you to that particular exchange filing. So you'll read it and you'll understand, and accordingly you can take your bet, like whether you want to invest in this particular company or not, how it stands to benefit, actually में benefit होगा कि नहीं, वो आप कैसे स्टडी करते हैं, that उस पर डिपेंड करता है, राइट. Now I'll take another, जैसे कि अगर बोनस हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि अगेन स्टार लाइनअप एंटरप्राइज में बोनस रिलेटेड कोई अपडेट आया है, यहाँ पे वो बोनस लेके आ रहा है. सो ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा. नाउ अगर आपको इतना सारा भी नहीं कंपनी फाइलिंग्स को गो थ्रू करना है, सो फॉर दैट आप क्या करेंगे, आप सिंपली किसी को भी स्टार मार्क कर लेंगे. जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, से एक किसी को भी रैंडमली हम स्टार मार्क करते हैं. सो दिस गेट्स एडेड टू माय कंपनी फाइलिंग्स, राइट. सो द क्वेश्चन कम्स कि माय कंपनी फाइलिंग्स कहाँ पे है. सो अगर आप राइट हैंड में एनालिटिक्स सेगमेंट के जस्ट नीचे आपको मिलेगा माई एससी, एंड वहां पे आप देखेंगे माई कंपनी फाइलिंग्स का एक ऑप्शन आ रहा है. क्लिक ऑन दैट. सो यू सी जितने को भी मैंने स्टार मार्क किया है ना, वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाता है. एंड इफ यू वांट टू रिमूव एनीथिंग, सिंपली क्रॉस इट आउट. एंड इफ यू वांट टू ऐड एनी कैटेगरी, सिंपली ऐड कैटेगरी एंड स्टार मार्क इट. सो ये लिस्ट आउट हो जाता है आपकी कैटेगरीज में, एंड जितने भी आपने सिलेक्ट करके रखे हैं ये कैटेगरीज, उसके रिलेटेड सारे फाइलिंग्स डेट वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट. दिस इज अबाउट कंपनी फाइलिंग्स. ऑल राइट. नाउ कम्स द क्वेश्चन, अगर मुझे इंडिविजुअली किसी कंपनी का फाइलिंग्स चेक करना है, सो हाउ आई डू. सो जैसे रहते हैं कि यहाँ पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट सेक्शन आएगा. क्लिक ऑन दैट एंड यहाँ पे आएगा अनाउंसमेंट्स. सो आपको रिलायंस इंडस्ट्री के जितने भी सारे अनाउंसमेंट्स हैं यहाँ पे आपको डेट वाइज सब मिल जाएगा. एंड इफ यू वांट टू फिल्टर इट कैटेगरी वाइज, यू हैव दिस फनल. आप यहाँ पे इजीली सिलेक्ट करें. जैसे कि अगर मैं एक्विजिशन पे क्लिक करूं तो 22 जुलाई को लास्ट अपडेट था पर्टेनिंग टू एक्विजिशन. सिंपली क्लिक ऑन दिस पीडीएफ एंड आपको यहाँ पे उसका डिटेलिंग मिल जाएगा, राइट. नाउ लेट्स गो इनटू इन्वेस्टमेंट थीम्स. So what is investment themes? So they are narratives which give push to certain sectors, industries, and then from those narratives there are companies who leverage on those narratives and stands to benefit the maximum out of it, right. जैसे इथेनॉल हुआ तो तब बहुत सारे शुगर कंपनीज बेनिफिट किए, वन बीइंग बलरामपुर चीनी. फिर आपका जब वेडिंग सीजन आता है तो हम देखे हैं कि स्टॉक्स लाइक Titan and then hotel sector stocks, they give a good run. Plus आपका वेदांत फैशन which is like मान्यवर, उनको भी अच्छा गेन होता है, right. So what we do is we capture certain themes and we capture the major stocks which stands to benefit from them, and हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट थीम्स के अंडर में लिस्ट आउट करते हैं, राइट. सो जैसे कि वेडिंग में हो गया टाइटन, इंडियन होटल्स, आदित्य बिरला फैशन, मेट्रो ब्रांड्स, Vedant fashions. So these are few of the stocks, right. And if you want to check their return, आप यहाँ से time toggle करके भी check कर सकते हैं how these particular stocks have done so far. Investor portfolios, मैं अभी इन्वेस्टमेंट थीम, उसके बाद मैं इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में जाऊंगी, राइट. फिर मैं तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कब ये अपडेट होता है. So this was about investment themes, right. I'll take another example. जैसे कि शाइनिंग मेटल गोल्ड, एंड व्हाट आर दी स्टॉक्स लिस्टेड आउट हियर. एंड अगेन 6 months परफॉर्मेंस हम लोग चेक करेंगे. सो इट हैज गिवन अ डिसेंट सेट ऑफ रिटर्न.
इन्वेस्टमेंट थीम्स आर अपडेटेड एज एंड व्हेन एनी मेजर एवरी क्वार्टर बेसिस पे ये अपडेट होता है. Okay, so this was investment themes. Now let's get into investor portfolio. Now here what we do is we list out all ACE investors, both on individual as well as institutional levels, and we try to bring out what are their holdings, which company has been, which stock has performed well over the last few 3 months, and then also where has been the major changes if any, and we present the same. So सबसे पहले जैसे राकेश झुंझुनवाला एंड एसोसिएट का एग्जांपल ले, तो यहाँ पे 27 इनका टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग्स है, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ दैट होल्डिंग, एंड लास्ट 3 months में जुबिलेंट फार्मामोवा हैज बीन द टॉप परफॉर्मर. सो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इनका कहाँ कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा एलोकेशन है, कौन से मार्केट कैप में सबसे ज्यादा एलोकेशन है, रीसेंट चेंज कहाँ पे हुआ है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड रीसेंट डील्स कहाँ पे हुआ है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं. देन वी गो टू शेयर होल्डिंग. नाउ द क्वेश्चन वाज कि ये अपडेट कब होता है. सो दिस पोर्शन we need to understand that every company updates their shareholding pattern every quarter, right? So जैसे every quarter जैसे वो अपडेट होता है एक्सचेंजेस पे, सिमिलरली ये भी क्वार्टर वाइज ही अपडेट होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, राइट? देन कम्स द की चेंजेस. नाउ ये की चेंजेस ईओडी बेसिस पे ये अपडेट हो जाता है, राइट? मार्केट चेंजेस एंड प्रीवियस होल्डिंग एंड करंट होल्डिंग ये है, एंड डील्स आपको यहाँ पर मिलेगा. सो व्हेनेवर अ चेंज हैपेंस वो उसी ईओडी बेसिस पे ये अपडेट हो जाता है. एंड हियर यू हैव द गेनर्स एंड द लूजर्स, राइट? सो दिस वाज अबाउट the investor portfolio. Now my colleague Raghav will take you through the mutual fund section. Over to you, Raghav. Thank you, Santana. Good evening, everyone. I am Raghav from mutual fund team of Stockhead Social. So today I'll explain you about the platform, the mutual fund section, about the Stockhead Social platform, and the section of the mutual funds. How do we use this? So the first screen, ये जो दिख रहा है आपको mutual funds home, this is basically a concise of all this tabs which is here in the left side. So आपको यहाँ पे top performing scheme दिख जाएगा, which is one of the equity, one of ELSS, and it has ETF as well and debt category. एंड यहाँ पे टॉप AMCs आपको जो भी AMCs वर्किंग इन इंडिया आपको यहाँ पे सारे दिख जाएंगे. एंड बिलो दिस यू हैव द म्यूचुअल फंड क्लासेस where you can see all the categories of equity, debt, hybrid. And let's dive deep into each section. जैसे ये first section is the AMC one. In India we have around 44 AMCs. And there can be new AMCs जैसे Zerodha Grow अभी नया AMCs आया है, so it can be like 46. मगर ये major AMCs ये है SBI Mutual Fund, ICICI, HDFC, Nippon and Kotak. These are the top 5 AMCs, and you can check the AUM size of these AMCs. If you go inside this tab, you can see all these schemes they have in the equity category, debt category, hybrid, others. सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा. एंड यहाँ पे आप टाइम फ्रेम भी चेक कर सकते हैं. इफ यू सिलेक्ट 1 year टाइम फ्रेम, ऑटोमेटिकली जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है जो हाईएस्ट रिटर्न दिया है वो ऊपर आपको शो करेगा. जैसे कि SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF हैज गिवन 72% रिटर्न, ये आपको सबसे ऊपर शो कर रहा है, एंड ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में नीचे आपको दिखेगा. Same with all the tabs. If you change the category, if you change the time frame from 1 year to 2 year also, you can see the same things happening. ये अपने आप ऑर्डर में सिलेक्ट हो जाता है. Then here is the overview section where you can see the AMC's overview कि कौन सा कितने स्कीम इनके पास है, कितना टोटल AUM साइज है, इंसेप्शन डेट क्या है, and other details of the AMC's you can check out here. And in this key person you can check all the fund managers which are operating in for SBI mutual fund जो funds manage कर रहे हैं, and their management team, their corporate governance team, director वगैरह सब details आपको यहाँ मिल जाएगा.
एंड ये AUM टैब है। AUM टैब में आपको मंथ वाइज कितना SBI म्यूचुअल फंड्स के पास अगस्त में AUM था, 11,14,000 करोड़ का। तो आपको ये दिख जाएगा मंथ ऑन मंथ कितना इंक्रीज हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो चेक, ये टोटल ऑल कैटेगरीज का है। यू कैन ओनली चेक इक्विटी का देखना है अगर, तो आप ये टैब में जाके ओनली इक्विटी में 7 लाख करोड़ अप्रॉक्स है, आप वो देख सकते हैं। And yeah, the second tab is the class wise. If you see the class wise, you can see all the different categories within equity debt जो होता है, वो सारे categories का क्या bifurcation है AUM का, आपको वो दिख जाएगा। इक्विटी का यहाँ पे, डेट का इफ यू सी, यू कैन फाइंड इट हियर, लिक्विड फंड सबसे ज्यादा है। हाइब्रिड का इफ यू सी, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैज द हाईएस्ट। एंड लाइकवाइज यू कैन चेक ऑल दी कैटेगरीज एंड क्लास वाइज में SBI म्यूचुअल फंड का। यू कैन ऑल्सो सी द मंथ वाइज डेटा हियर, द पास्ट 12 मंथ का डेटा यहाँ पे है, सो आप मंथ वाइज कंपेयर कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो चेक द स्कीम वाइज कि SBI म्यूचुअल फंड्स में 120 स्कीम्स में कौन से स्कीम में सबसे ज्यादा है। सो SBI निफ्टी 50 ETF हैज द हाईएस्ट एलोकेशन ऑफ 2 लाख करोड़ अप्रॉक्स। तो आप यहाँ पे सारा डेटा चेक कर सकते हैं। एंड यू कैन एनालाइज रिसर्च एट योर ओन पेस, एट योर ओन टाइम, कि आपको कौन सा स्कीम में कितना AUM है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या ग्रोथ है, वो आप सब चेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को SIP ना करके लमसम जब यूनिट प्राइस हो तब लेना हो, तो यूनिट प्राइस का एनालाइज कैसे करें? सर यूनिट प्राइस से म्यूचुअल फंड का एनालाइज नहीं होगा, आपको उसका फंड का पैरामीटर्स देखना होगा। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू वन सेकेंड। ये जैसे SBI ब्लू चिप फंड है, अब इसके अंदर गए तो आपको इसका NAV इज द रिटर्न्स। NAV से आपको एनालाइज नहीं करना है कि वो फंड परफॉर्म कैसा कर रहा है, आपको उसका पैरामीटर्स देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेशियोज है, आप रेशियोज चेक कर सकते हैं कि कितना उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है उनके मीन रिटर्न से। अगर उनका जैसे जैसे ये ब्लू चिप फंड है, इसका इंडेक्स हुआ, बेंचमार्क इंडेक्स है लार्ज कैप, तो ये लार्ज कैप से कितना डेविएट हो रहा है, आप वो चेक कर सकते हैं। व्हाट इज द बीटा को रिलेशन, फिर ये सब रेशियोज है, रिस्क एडजस्टेड रेशियोज, शार्प रेशियो वगैरह आप चेक कर सकते हो। क्या परफॉर्मेंस है उसका, आप वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे 1 ईयर परफॉर्मेंस, 2 ईयर एनुअलाइज रिटर्न्स, 3 इयर्स रिटर्न आप यहाँ देख सकते हैं। फिर उनका होल्डिंग किसमें किसमें है, विच स्टॉक्स दे आर एलोकेटेड टू। जैसे इक्विटीज में 95% है, विद इन इक्विटीज विच स्टॉक्स हैव द हाईएस्ट होल्डिंग। जैसे HDFC बैंक है 7.8% ऑफ होल्डिंग, एंड देन ICICI है 7% होल्डिंग, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो these way, like this you have to analyze, not on the basis of the NAV. NAV is basically the returns जो आपको मिल रहा है स्कीम का, वही आपको NAV में शो करेगा। ठीक है। सो द नेक्स्ट टैब इज म्यूचुअल फंड क्लासेस। दिस इज ऑल्सो द टैब फॉर ऑल द कैटेगरीज जो अभी अपने एक्सप्लेन किए, वही सेम चीज है कि इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, अदर्स, ऑल द 4 कैटेगरीज। एंड विद इन दैट सब कैटेगरीज, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, large and mid, multi cap, you can check all the categories here. And when you change the time frame, it will be like मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये मिड कैप कैटेगरी का एवरेज रिटर्न्स दिख रहा है। इसके स्कीम्स, इसके अंदर जितने भी सारे स्कीम्स है, ये इसका 48% एवरेज रिटर्न है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल हैज गिवन 70%, 71% रिटर्न्स, विच इज बेटर देन द एवरेज रिटर्न्स। तो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं, अपने एंड में रिसर्च कर सकते हो। ये 2 ईयर में भी आप सेम चीज देख सकते हैं। यहाँ ओवरव्यू में यू कैन चेक कि मिड कैप फंड होता क्या है, एंड कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ये। यू कैन ऑल्सो सी अ ब्रीफ वीडियो वी हैव अपलोडेड हियर। एंड उनका क्या AUM है मिड कैप फंड्स में, क्लास वाइज, AMC वाइज, मंथ वाइज, यू कैन चेक हियर। एंड दिस इज द की पैरामीटर सेक्शन कि क्या क्या मार्केट कैप है मिड कैप फंड्स में। जैसे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज हैज द हाईएस्ट मार्केट कैप ऑफ 5,000 करोड़। नो सॉरी, दिस इज द AUM, या ये है एक्सिस, एक्सिस मिड कैप का हाईएस्ट मार्केट कैप है, एंड HDFC मिड कैप का हाईएस्ट AUM है। सो आप ये देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है। जितना प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसका वैल्यू मतलब कम होगा, अराउंड 20, 30, 40, तो इट मीन्स कि इट इज मोर वैल्यू परचेज, यू कैन इन्वेस्ट मोर एंड देयर इज अ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ। फिर ये प्राइस टू बुक रेशियो है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, डिविडेंड यील्ड, यू कैन चेक ऑल दी की रेशियोज हियर ऑफ द स्कीम्स। Same with the debt category, hybrid category, and other categories. We have 4 categories. So this is equity, debt, hybrid, and others. Within others, you can find the commodity ETFs like ETF for gold and silver, and foreign ETFs, overseas ETF जो US stocks and China stocks में अभी बहुत बज़ है China stocks का, तो आप वो चेक कर सकते हो, यहाँ पे है।
Within ETF Gold also you can see all the listed ETFs, जो भी फंड हाउस अपना ETFs निकाले हैं सारे आप चेक कर सकते हैं, विद NAV रिटर्न्स मंथ ऑन मंथ बेसिस, ईयर ऑन ईयर, आप सब डेटा यहाँ पे देख सकते हैं. Then the next section is the fund manager. So fund manager, all the fund managers which are operating in India, जो भी सारे schemes manage कर रहे हैं वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे. You can search using the search tab here, or you can also go within the scheme and check the fund manager. Like I'll show you. Like if you go in the Nippon India large cap, you can see the fund manager here. You can see it from here as well, and you can go in this tab also and check. So we go to the Ravi Prakash Sharma ji's tab, and then we'll see these are the schemes managed by Ravi Prakash ji. ये इक्विटी कैटेगरी एंड अदर कैटेगरी, दो कैटेगरी में ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट एज इन फंड मैनेज करते हैं. एंड यहाँ पे क्या रिटर्न्स दिए हैं फंड ने वो भी चेक कर सकते हैं, क्या उनका AUM साइज वगैरह है वो भी देख सकते हैं. दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द फंड मैनेजर, कि उनका क्या पर्सनल, मतलब उनका क्या एज है, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ हिज, एंड क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशंस है, आप सब यहाँ डिटेल्स चेक कर सकते हैं. Then the next section is the MF investment themes. Just like we had in the equity section, investment themes, we also have investment theme section in the mutual fund. यहाँ पे आपको theme के accordingly आपको schemes मिल जाएगा. जैसे first theme is the tax saving investment theme. So if you go inside, you can see all the schemes which has performed better and which is the highest AUM among all the ELSS schemes. वो आपको यहाँ show करेगा. ऐसे तो ELSS के बहुत सारे schemes हैं, मगर जो best performing schemes हैं वही आपको यहाँ show करते हैं. सो दिस कैन कम इन हैंडी. आप यहाँ पे सारा थीम्स देख सकते हैं, उसके अंदर कौन सा स्कीम परफॉर्म क्या कर रहा है, क्या उस थीम का ओवरव्यू है, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन दीज थीम्स, एंड हाउ डू वी शॉर्टलिस्ट दिस एज इन स्टॉकेज, हाउ डू वी शॉर्टलिस्ट दीज फंड्स, यू कैन चेक हियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड? सर हाइब्रिड मीनिंग कि इक्विटी और डेट एलोकेशन दोनों है. If you see here, I'll show you one example. In the hybrid category, if you see the aggressive hybrid fund, ये जो फर्स्ट फंड आप देखेंगे JM Aggressive, इसका होल्डिंग में यू कैन सी डोमेस्टिक इक्विटी 77% इन्वेस्टेड है, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच इज अदर देन दी इक्विटी, मतलब कि दूसरा एसेट क्लास है, दिस इज 10%. कॉर्पोरेट डेट है 8%, एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है 1% अप्रॉक्स. तो ये अदर देन इक्विटी भी इन्वेस्ट करते हैं. इट कैन बी इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड, कमोडिटीज, इट कैन बी एनीथिंग. म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी हो सकता है दूसरे म्यूचुअल फंड का. So now we will see these NFO section. This NFO section is new fund offering. Just like stocks में we have IPOs, we have NFOs in mutual fund. So अभी ongoing NFOs आपको यहाँ दिख जाएगा कौन कौन से NFOs कब start हुए हैं. Like ICICI Prudential Nifty 200 value 30 ETF opened on 30th September and will close on 14th October. फिर उसके अंदर आप जाके क्या डिटेल्स है उसका, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, व्हाट इज द एग्जिट लोड, एंड हाउ मच इज द रिस्क रेटिंग बाय सेबी, तो वो आप सब चेक कर सकते हैं, की पैरामीटर्स एंड कौन फंड मैनेज कर रहा है, ये डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएगा. एंड जो रिसेंटली क्लोज्ड NFOs है वो आपको रिसेंट टैब्स में दिखेगा, बिकॉज इट इज क्लोज, सो इट हैज अदर टैब. एंड ये जो अपकमिंग टैब है, ये अपकमिंग NFO जो आने वाले हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा. And these two are custodians and registrars. So custodian is कि mutual funds अपना stocks जो hold करते हैं scheme में वो किसके पास रखवाते हैं. So this is like if you go into HDFC Bank Limited, we can see that ICICI mutual fund, HDFC mutual fund, Quant mutual fund सारे के custodian HDFC Bank है. So this is technical. This is not much required by retail investors, but you can check also this. And registrars also, we have two registrars in India, which is CAMS and K Fintech. So all the mutual funds are empaneled with these two registrars, either with CAMS or with K Fintech. So आप देख सकते हैं CAMS के अंदर ICICI, SBI, HDFC, कोटक ये सारे registered है, and K Fintech में भी similarly Axis, UTI, Nippon, Mirae Asset ये सारे आपको मिल जाएंगे. So the main section which you will like it will be useful for you is MF classes, AUM analysis, and AMCs. These three tabs are the most useful for analyzing which mutual fund is best for you and क्या performance रहा है उनका, क्या parameters है, आप सब details हमको check कर सकते हैं.
So now we'll explain you how do you post your queries in the mutual fund club in the Stockhead Social. So my colleague Santana will tell you more about this. Okay, thank you, Raghav, for your insight on the fundamental mutual fund section. So before we move forward, a quick go through how we can post our queries in the various clubs that are there on the Stockit Social platform. And post that, we will understand the edge insight section and the SME section, right? So यहाँ पे आपको जैसे से यहाँ पे आपको देखिए 9 dots देखने को मिलेगा. Simply click on that, right? And once you do that, it will in this second option you get is Stockit Social. आप उस पे क्लिक करें, right? The moment you do so, आपको ये पेज पे लेके जाएगा. Now just focus on your left hand side. आप देखेंगे यहाँ पे क्लब्स मेंशन्ड है. सो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज एंड ट्रेडिंग आइडियाज है जो बेसिकली स्टॉक आइडियाज डिस्कस करते हैं. एंड डाउट सॉल्विंग के लिए आपको क्या क्लब्स हैं अवेलेबल, दैट इज फंडामेंटल, टेक्निकल, एफएनओ, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड. सो राघव ने आपको जैसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया, सो हम लोग थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं म्यूचुअल फंड क्लब में, राइट? देखिए जैसे कि यहाँ पे एक धवल शाह सर ने एक क्वेश्चन पूछा है, राइट? I'm not getting into the question क्योंकि वो लेंदी है. So I'll just take you कि राघव इस पे कैसे रिप्लाई किया है, right? So be whatever the question is. देखिए यहाँ पे राघव ने इनको within 4 hours 1 hour में इसको आंसर कर दिया है, right? So सिर्फ आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उसमें म्यूचुअल फंड क्लब को में पोस्ट करें and राघव will provide an answer to it, right? Now let's get to fundamental club. यहाँ पे आप कोई भी क्वेरी पूछते हैं, एज वी ऑल नो कि फंडामेंटल क्लब में फंडामेंटल कोई भी क्वेरी हो उसमें टाइम लगता है, राइट? बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कॉल, एनुअल रिपोर्ट चेक करना है, न्यूज फ्लोज चेक करना है, रेटिंग रिपोर्ट्स चेक करना है. सो इट एंटेल्स टाइम, राइट? सो उससे व्हाट वी से इज दैट आप कोई भी क्वेरी पूछते हैं हम उसे 48 आवर्स में आंसर बैक करेंगे. सो से सपोज आप कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे यहाँ पे है वाटेक बाग, उसमें आपको लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए. सो व्हाट आवर एनालिस्ट इज डू इज दे एक्नॉलेज द क्वेरी, राइट? And they say that within the next 24 to 48 hours we'll revert to your query, right? Now the question comes, आप इसको कैसे प्लेस करें, क्वेरी को कैसे प्लेस करें? सो आप यहाँ पे देखिए स्टार्ट अ डिस्कशन टैब है, वहां पे क्लिक करें एंड से आई वांट व्यू ऑन which company, say Reliance. So what I'll do is I'll tag Reliance with a dollar sign and I won't place any space. I'll type Reliance. ऐसे करने से देखिए आपको रिलायंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है उसका ड्रॉप डाउन मिलेगा. I'll simply put Reliance Industries and post, right? सो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज पोस्ट हो गया. देन अगर मुझे किसी भी सेक्टर रिलेटेड क्वेरी पूछना है तो आई से व्यू ऑन, से अगेन आई डॉलर टैग एंड से शुगर. तो मुझे यहाँ पे शुगर रिलेटेड सारे कंपनीज और सेक्टर्स भी मिलेंगे. सो आई जस्ट चेक, तो मुझे मिल नहीं रहा है. सो व्हाट आई डू इज आई रिमूव, आई जस्ट डू अ बैक स्पेस एंड मुझे ये इंडस्ट्री मिल गया, राइट? अगेन दी analyst will look and revert to it. So there are a lot of queries. I'll just take one. So you buy at the CMP that is given or near about it. टेक्निकल टीम, अच्छा आप उसको टेक्निकल क्लब में फिर से अपना क्वेश्चन पूछे, राइट? तो वो आपको हेल्प कर देंगे. Just second, there is another query.
सर दैट विल बी हेल्प्ड बाय द कस्टमर डिलाइट टीम। वो आपको समझा देंगे कि आप कैसे क्या क्वेरीज पूछ सकते हैं, कितना क्या लिमिट्स है, वो आपको वो कस्टमर सपोर्ट टीम बता हेल्प कर देंगे, राइट। But for fundamental club, what we say is one query per day for any client. You can ask multiple queries, but one query will be answered in one day, right? So this is how you can place your queries. Now बात आता है कि आपको आज का रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा। So आप सबसे पहले टाइप करें स्टॉक एज, एंड जैसे आप करेंगे आपको कस्टमर डिलाइट का ऑप्शन मिलेगा। Just do add to search and then recordings. Again add to search एंड आपको सारे रिकॉर्डिंग्स जितने भी है अवेलेबल उसके सारे के लिंक्स मिल जाएंगे, राइट। एंड इवन आफ्टर दैट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सो आस्क टेक द हेल्प फ्रॉम द कस्टमर डिलाइट टीम, दे विल बी देयर टू गाइड यू विद द सेम, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन पोस्ट आवर क्वेरीज in this various clubs, right? Now let's get back to the app and understand what is Edge Insights. सो एज इनसाइट्स ये सेक्शन एवरीडे ईओडी अपडेट होता है। नाउ यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल स्निपेट्स मिलेंगे, स्टेटिंग एनी न्यू like what has been the latest update on these particular companies, be it technical or fundamental. जैसे यहाँ पे 30th सितंबर दैट इज मंडे का था कि डाइवर्सिफिकेशन और डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई अपडेट आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। सो अगर आप ये ब्लू टिक में क्लिक करेंगे, सो इट विल टेक यू टू दैट पर्टिकुलर अपडेट, राइट। एंड सिमिलरली अगर आप ऑल कंपनी फाइलिंग्स में क्लिक करेंगे, सो आपको वो पूरा लिस्ट ऑफ फाइलिंग्स में लेके जाएगा। एंड इफ यू गो टू सिमिलर स्टॉक्स, देन डाइवर्सिफिकेशन डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी कंपनी में किसी भी कंपनी में कुछ अपडेट आया है आपको उसका लिस्ट मिल जाएगा। So what if you post in the wrong club? Then there will be people who will guide you, the analyst will guide you how you can put it out to the in the right club, right? All right. Yeah, all recordings are free. So this was about Edge Insights. It gets updated. Again, I'm explaining that this gets updated every day EOD, right? And you like जैसे ICICI Bank में new case study आया है. So just click on this and will take you to the key levels. And अगर आप Edge Insights reports में जाएंगे तो आप इसका case study access कर पाएंगे, right? Now let's understand the SME zone. SME zone में all the SME stocks are listed out, right? आप यहाँ से इसको easily download भी कर सकते हैं. You can check out the gainers and the losers. किसका कब results declare हो, क्या results है वो आप यहाँ से देख सकते हो, right? Now the question comes, what is difference between a SME stock and a main board company? So these companies, they don't come up with their results every quarter, but on हाफ ईयरली बेसिस। तो अगर आप रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे क्वार्टरली टैब के अंडर में आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा, आपको उसके हाफ ईयरली रिजल्ट्स चेक करने पड़ेंगे। देन इसमें लिक्विडिटी इश्यूज होता है बोल के इन ये सब कंपनीज में आप वन सिंगल शेयर खरीद या बेच नहीं सकते हो, यू हैव टू डू सो इन लॉट्स, राइट। सो you have to do so in lots, and the only thing here is that we don't provide the lot size as of now. We are in the process of doing so. So in the meantime what you need to do is आपको BSE और NSE में जाके lot size check करना पड़ेगा। So how to do the same? So पहले हम लोग NSE में check करते हैं। Just wait for a second's time. Yeah. So यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंपनी का नाम टाइप करते, कोई भी जो SME में है, जैसे जैसे नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजी, तो आप देख सकते हो ये ऑलरेडी
यहाँ पे SME मेंशन्ड है, सो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि दिस पर्टिकुलर कंपनी इज अ SME स्टॉक। Once you click on that, आप सीरीज में देखेंगे SM लिखा हुआ है, so this denotes that this is a SME stock. Now comes where do we get to see the lot size? तो आप देखिए ट्रेड इंफॉर्मेशन में लास्ट में आपको लॉट साइज मेंशन्ड है। दैट मीन्स अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक साथ में 100 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। सिमिलरली आप अगर इससे एग्जिट भी लेना चाहते हैं तो आप जब एग्जिट लेंगे तो आपको एक साथ 100 शेयर्स ही बेचने पड़ेंगे, राइट? सो दिस इज हाउ यू चेक द लॉट साइज ऑन द NSE platform. Now let's get into BSE. So यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया, राइट? एंड यू सी यहाँ पे ग्रुप में MT लिखा हुआ है, राइट? सो व्हेनेवर किसी भी कंपनी BSE में ग्रुप में MT या M मेंशन रहे, सो वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ SME स्टॉक। सो ग्रुप में क्या रहेगा, इधर M और MT, राइट? एंड वेयर डू वी गेट टू सी दी लॉट साइज? सिंपली गो टू दिस कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन सेक्शन एंड थोड़ा सा हम यहाँ देखिए सिक्योरिटी डिटेल्स में आपको मार्केट लॉट साइज मेंशन्ड है। मतलब यहाँ इस पर्टिकुलर कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एट वन टाइम 1000 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू एग्जिट इट एट वन गो यू हैव टू सेल 1000 शेयर्स, राइट? So this is about the SME stocks. So with this we have covered all the topics that we were supposed to cover in today's session. Okay, so I'll just mention how you can find today's recording. So आप यहाँ पे पहले सोशल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, second, click on this social platform. The moment you go there, you simply type Stock Edge, and moment you do so, आपको थर्ड नंबर पे मिलेगा, देखिए Stock Edge Customer Delight. Do add to search. Then you type recordings. Again add to search. Again search. एंड आपको यहाँ पे सारे रिकॉर्डिंग्स लिस्ट आउट हो जाएंगे। डिस्पाइट दिस अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम लगे तो डू वन थिंग, यू जस्ट आस्क द कस्टमर डिलाइट टीम टू हेल्प यू विद द सेम एंड दे विल गाइड यू। ऑलराइट, okay, so with this we wrap today's session. Thank you all for joining and have a good day. Good night.